performance, and we saw you speaking also so confidently. And जो आपने जो सब सारी मुद्राएं आपने करके दिखाई, they were so nice, and it was really wonderful. So all the very best to you. And as Anu has been saying, you have a long career ahead. You have already scaled lot of heights. काफी ऊंचाई तक आप पहुंच गई हैं, और अभी और भी आप आगे जाएंगे. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे तो ऐसा लगता है इनका ऑटोग्राफ ले लेते हैं भाई लोग. करेक्ट. नहीं, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, थैंक यू. ना मत निधि, एक मिनट, मैं फिर से कहती हूँ, काटना मत, इस टाइम बोलना हाँ मैं दे रही हूँ. निधि के लिए कहते हैं कि ऑटोग्राफ ले लेते हैं अभी, और आपने हाँ बोलनी कि हाँ ऑटोग्राफ ले लेती हूँ, मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि कल ये वहाँ वाली है जहाँ पे आप समझेंगे कि हमने इसके साथ एक प्रोग्राम देखा था. So sweet. So sweet. Yes. Thank you. हाँ. So shall we start? Yes, please. Yeah. So namaste. Very cordial welcome to all the participants who are on the on screen as well as on the live program. Right? So this is about Panchakosha, and what are the layers of our personality. We'll try and explore these layers. I will give you a little background to the whole thing, and then we will go by that. So what we are planning to do is we will understand about these layers, okay? And we'll also try to do, I will also share with you a few practices which will connect you and make it a little more participative, little more, you will be able to relate with what इसमें theory भी है, और इसमें आपके लिए कुछ practice भी है, ताकि आपको वो विषय समझ में आ जाएगा. And I hope this will be a good combination, right? I'm very sure it will be great combination, Shrikant ji. Right. Very so Panchakosha, we have all understood personalities. Yeah. When we talk about personalities, we look at the behavior of a person. We talk about feelings, social, professional. अभी काफी सारी बातें हमने की, right? And this personality topic has been very well researched. Psychology का एक subject है ये, and so much of work is done on this. But what I wanted to share with you is that our own Vedic tradition, right, has a very well documented Panchakosha commentary, you can say. And this commentary is between Varuna and his son, right? And वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ, right? तो काफी सारे बात हम lot of times we say that I am not the body, I am not energy, I am not the particular thing. तो क्या है, right? Soul है, spirit है, what it is that? तो हमारे शास्त्रों में this is very well documented. And that's why I was suggesting कि चलिए let's learn about it. कुछ लोगों ने some people may be already knowing this, but nevertheless I am making an attempt to look at this topic from a different perspective. So पांच personality के या 5 dimensions है. There are 5 dimensions to our personality, and this slide looks to be very busy. आपको लगता है इसमें बहुत सारी क्या इसमें पढ़ना है. Don't worry, यही तो हमको
अगले कुछ समय में we want to check and go through these things. So we have the physical body, शरीर है, देखते हैं हम जो दिखता है, right? So we all know about it, right? दूसरा कि उस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, शरीर के पीछे, शरीर में जो भी हम कर रहे हैं, अभी हमने निधि का डांस या उनसे बातचीत की, वो देखी, तो all that thing is done through the energy system. The third is our bhav, right, which is our emotions. उसके आगे है हमारा ज्ञान, right, which is our बुद्धि, intellect, और आखिर में we have something called Ananda, which is our core personality. So we'll go to these things, right? इसी स्लाइड को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं. Just for you have a little more clearer picture of the body than the chakras, which are part of the energy system. Okay? And then we'll go into more details about these things. So sharir, जैसे हमने कहा, the gross body, which is the physical body, ये हमारे this is made up of all our cells, our organs, and there are systems are there. Ayurveda में सप्त धातु, there is a concept which are part of the physical body. So हम सबको मालूम है कि हमें प्यास लगती है, भूख लगती है. Okay? So all these things are there. और हमारे physical body को चाहिए diet, अन्न चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हवा चाहिए, राइट, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए. सो ये सब चीज हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं. वी नो अबाउट दिस थिंग. एंड इसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट आवर फिजिकल बॉडी, हाउ कैन वी नरिश आवर बॉडी? थ्रू डाइट, थ्रू फूड, राइट, एंड थ्रू उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको यदि संवारना है, उसको और अच्छा बनाना है, तो we'll all have to do some kind of a exercise. Okay? वो चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई लोग जिम में जाते होंगे, कोई स्केटिंग करते होंगे, कोई स्विमिंग करता होगा, राइट? सो कोई भी whatever we do, right? हमारे शरीर को, our physical body will need exercise. Okay? And this is very very important, right? And दूसरी बात कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल तो जाते हैं, बट वो ओरिजिनल नहीं होते हैं. ओके, नी रिप्लेसमेंट जब होता है तो लोग नीचे बैठ नहीं पाते. ओके, तो इसी प्रकार से और भी बातें हैं. तो हम लोग वी हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस. हमने काफी सारी प्रगति की और we have tried to do something, but original equipment जो होता है, originally होता है. So उसको यदि ठीक रखना है, if we have maintained that our body in a good condition, physical body in good condition, then we must make that exercise a daily part. अब ऐसा नहीं कि हमने सैटरडे संडे छोड़ दिया, 5 दिन किया या एक दिन छोड़ के एक्सरसाइज करेंगे, तो that will not be sufficient, क्योंकि body has got a rhythm, it has got a bio clock, right? उसमें एक टाइमर होता है, एक उसकी रिदम होती है, and you cannot break it, क्योंकि हमको 12 बजे 1 बजे भूख जरूर लगती है, रात को नींद आती ही है, right? So body has got a clock and body has जो उसका composition है, उसके लिए exercise is a must, right? So whatever we do, हम कितने भी busy हो, और शायद हम लोग आजकल घर में भी है, तो we have to take some time out and do this exercises. Okay. Next, let's go to the next part, which is the energy body. Okay. So पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश. तो ये शरीर कैसे चलता है, हमारी गाड़ी कैसे चलती है,
वो चलती है जब हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, गैस भरते हैं। कि ये सारे इक्विपमेंट्स कैसे चलते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो the pranamaya kosh is about the energy system, and when we talk about the energy system, it is about the chakras, it is about nadis, it is about other things, kundalini and so on and so forth. तो उसके कुछ पहलू let me share with you. So क्या होता है, how does this prana or pranic energy works for us, right? So prana and ayam, दो बातें हैं उसमें। प्राणायाम जब बोलते हैं, when we talk about pranayam, we are talking of two things. One is the energy, right? And second is expansion, the control and expansion of prana, right? Is called pranayam. तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है, they are two big topics for this discussion. तो थोड़ा आपके लिए for a little understanding of what this is, our pranayam or our breathing, our अपनी जो सिस्टम है, हमारी नासिका है, we have got a left and the right side, दो उसमें passages है। तो जो right nostril है वो सूर्य नाड़ी है, उसमें से हमको ऊर्जा मिलती है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इट इज चंद्र नाड़ी, हमको कूलिंग मिलती है। हमने अभी ये डिप्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो मन को शांत करना है तो क्या करना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। हमको एनर्जी चाहिए, हमको ऐसा लगता है कि अरे बहुत थक गए आज बहुत काम करना पड़ रहा है, आज बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था, बहुत थक गए। So what we should do, we should breathe through the right nostril, right? So एक हमारे शरीर में एक जैसे मैंने बताया एक सिस्टम है, there is a particular system, right? तो एक काम करती है एक्सेलरेशन का और दूसरी काम करती है कूलिंग इफेक्ट देने का। और तीसरा जो बात है और जो कुंडलिनी के बारे में बोला जाता है, इसको दोनों को शक्तियों को बैलेंस करना वो है कुंडलिनी का काम, राइट? सो इसमें हम लोग जाएंगे नहीं, विल नॉट गो मच इनटू दिस थिंग, राइट? बट let's do one practice which will help all of us. और ये क्यों, जैसे मैंने कहा कि why does this become breathing or pranayam become so very important? Because it directly affects our nervous system. हमारी मज्जा संस्था के साथ उसका इमीडिएट इफेक्ट हमको पता चलता है। आपने यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5-7 मिनट ब्रीदिंग किया तो आपको you will feel calmness, right? If you use your right nostril, you will feel the energy coming into your system. क्योंकि जो प्राण है, जो ब्रीदिंग है, वो मन और शरीर को जोड़ने वाला ब्रिज है, right? It's a junction, it's a bridge between the body and the mind, and therefore it directly affects, connects with the nervous system. Nervous system का काम क्या होता है? ये काम होता है सारे शरीर के इम्पल्सेस को, राइट? सारे शरीर की संवेदनाओं को एक मतलब शरीर से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से शरीर को इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारी बातें इसमें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू वन क्विक टेक्निक। एक टेक्निक हम आज इसमें करते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन, यहाँ लिखा था वो वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? सो वो एक टेक्निक हम सीख लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्या है कि मैं सिर्फ आपको थियरी बताते रहूं तो इट विल बी बिकम अ वेरी बोरिंग लेक्चर हो जाएगा आपके लिए। सो कोई चीज हम लोग सीख भी लेते हैं, सो होगा, हो सकता है आगे चल के आपको काम में आए। ओके, सो लेट्स डू दिस टेक्निक which is called as frontal brain cleansing, यानी
हमारे आज्ञा चक्र को सफाई करने का काम, और उस टेक्निक का नाम है कपालभाति। कपालभाति में क्या करते हैं, हम एक्सहेलेशंस करते हैं, वी डू exhalations, and that is why when we do exhalations the toxins of the body are getting thrown out. हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, वो है हमारा प्रश्वास, that is our exhalation. 70% 70% हमारे शरीर की सफाई हो सकती है, होती है थ्रू एक्सहेलेशन रूट, राइट। बाकी भी है, हमको पसीना आता है, ओके, सो बाकी भी चीजें हैं, तो दैट इज आल्सो देयर, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सहेलेशन पार्ट। तो यदि एक्सहेलेशन हम ठीक कर पाए तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। So, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। So let me stop the screen here and let us do this technique. So कैसे करेंगे इसको? How will we do that thing? हम exhalation जब करते हैं, so are you seeing the screen correctly, clearly? Yeah. So what we have to do is we have to do exhalation, right? And काफी जगह में काफी बार फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने की बात करते हैं। That is okay when people have got a little जिनको पास क्या बोलना चाहिए, जिसको बहुत प्रैक्टिस है उनके लिए वो ठीक रहता है, बट जनरल लोग, राइट, जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको जो रोज दे आर नॉट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, उनको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सॉफ्ट एक्सहेलेशन। वो कैसे कर सकते हैं, right? और जो फास्ट एक्सहेलेशन वो कैसा होगा, ये हो गया थोड़ा सा रैपिड एक्सहेलेशन, सबको it is not possible for everybody to do, but soft exhalation हर एक कोई कर सकता है। So let us practice that thing. थोड़ा सा पेट अंदर लेना, तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, श्वास बाहर जाएगा, राइट। डायफ्राम जब ऊपर आता है तो लंग्स में की जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रश्वास बाहर होता है। राइट, और जब हम प्रश्वास कर रहे हैं उसके साथ मन में भी हम वो धारणा करें, मन में भी हम ऐसा विचार करें कि मेरा तनाव, तान तनाव कम हो रहा है, आई एम लेटिंग गो माई स्ट्रेस, मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे दिल की सफाई हो रही है, राइट। जो चीजें आवश्यक नहीं है वो मैं बाहर कर रहा हूँ, राइट। हम लोग वो we use the word letting go, right? But letting go is very difficult. हम बोलते तो है अरे छोड़ दो यार, उसको माफ कर दो, चलो जाने दो, बट वो जाता नहीं है वो, राइट, राइट। इसीलिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने से we will be trying to do that thing. Exhalation करना, कितना करना, how much to do, 15 बार, 20 बार, 25 बार करना, थोड़ी सा आराम करना, थोड़ा सा आराम करेंगे, टेक अ रेस्ट लिटिल बिट एंड डू द सेकंड राउंड। ऐसा नहीं कि वो पहले राउंड में 200 कर लिए, 100 कर लिए, and then you will start palpitating or try to get into some other problem. तो कोई भी चीज धीरे से सोच समझ करके, राइट। तो पहले दिन में तो कभी कुछ होता नहीं है, यू डोंट डू दैट थिंग, बट जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो थोड़ा ज्यादा करे, है ना। सो दिस वन टेक्निक, राइट। सो पहला टेक्निक हमने सीखा एक्सरसाइज का, तो एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक या कहीं पे भी वॉक करो, छत पे वॉक करो,
टेरेस में वॉक करो, जहाँ धूप है, इफ यू आर फेसिंग द सन एंड सनलाइट, if there is a garden available, nothing like that, you will get much better air. And exhalation, right? Cleaning of your system, सफाई अभियान अपने शरीर का, अपने मन का, ये बहुत आवश्यक है. Letting go is so very important. चलते हैं आगे. Let's do that thing. We go to the third kosha, right? And which is called the Manomay kosha, right? तीसरी पहला अन्नमय कोश. आप नाम if you remember it's okay, if you don't remember it's okay, but we know कि शरीर के बाद में शक्ति, that is energy, and the third is the mind, मनोमय कोश. So मन का काम क्या होता है? What does the mind do? Mind is about memory, right? हमें बचपन की चीजें याद होती है. Maybe after 3-4 years, right? एकदम हम 1 साल के होंगे, कुछ शायद याद नहीं होगा, but कुछ certain things we may recollect and know, right? So मन का काम क्या है? 2 बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, but 2 मेन मुख्य बातें हैं. One is the memory, हमारी यादें, और दूसरा है हमारे विचार. मन में हमेशा विचारों का तरंग, विचारों की लहरें, right? There are thoughts which crisscross the mind every day. और हमारे मन में बहुत सारे विचार हमेशा आते जाते रहते हैं. और हमारे मन की अवस्था कैसी होती है? जैसे हमने कहा, हम बीच में बातचीत भी कर रहे थे, कभी मन बड़ा चंचल होता है. हमको सबको मालूम है कि मन बड़ा चंचल होता है, राइट? एंड कभी बहुत अच्छा लगता है, या कभी ऐसे डल लगता है, मूड अच्छा नहीं रहता है. सो मन का संबंध कैसे मूड के साथ होता है? कभी अच्छा लगता है, कभी ऑसिलेटिंग होता है. जो पुरानी घड़ियां होती थी, उसमें एक वो ऑसिलेशन के लिए एक पेंडुलम होता था. कभी लेफ्ट जाता है और राइट जाता है, उसको एक रिदम भी होता था. मन का भी कभी कभी ऐसा ही होता है. कभी हम फोकस्ड होते हैं, राइट? जब कोई प्रोग्राम हो, जब कोई को काम करना हो, और शायद इस समय में उसको पूरा करना हो, तो क्या करते हैं हम लोग? हम मोबाइल बंद कर देते, व्हाट्सएप बंद कर देते, और वो काम हमको अभी 11 बजे 11:30 बजे खत्म करना है, उस संकल्प लेके उसको काम करते हैं, राइट? सो ये मन की अनेक अवस्था है. देयर आर मेनी stages of the mind. The mind is going through different stages of thing. So what is meditation? What is thing? The more we get from the distraction, and more we get into organized, right? जो हमारे मन जो उथल पुथल है, उससे थोड़े से हम लोग शांत हो जाएंगे, तो हमारा काम थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, हमारा आउटपुट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, राइट? वी कैन डिलीवर अ गुड आउटपुट इफ द माइंड इज काम, राइट? जब मन शांत रहता है, तो द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी डू, जो भी काम हम करते हैं, उसका आउटपुट हमको अच्छा मिलेगा. जब मूड खराब रहता है, हम सबको मालूम है अपना आउटपुट कैसे होता है, हमारे हैंडराइटिंग कैसे होती है, हम बात कैसे करते हैं, हमारा टोन कैसे होता है, ये सब हम जानते हैं, राइट? बट जानने से उसके बाहर निकलना, राइट, ये आवश्यक है. और उसी के लिए ये सारी बातें हमको थोड़ी सी करनी चाहिए. तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जैसे हमने मन को देखा संकल्प और विकल्प के बारे में, एक बात थोड़ा, मन क्या करता है? संकल्प करता है, नहीं कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ. ओके, फिर ऐसा लगता है, ठीक है ना, कल तो क्या है,
ये महीना कब खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं कुछ ही दिन बाकी है, चलो ऐसा काम करते हैं 1 तारीख से हम शुरू करते हैं। तो ये संकल्प और विकल्प हमेशा हमारे मन में चलता रहता है। कौन करता है? ये हम खुद करते हैं या कोई हमारे कोई होते हैं, तो जैसे हमने अभी बात भी की, तो हमारे गाइड होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, या हमारे कोई पेरेंट्स होते हैं, वो बताते हैं कि ये करो वो करो, सुनते हैं, संकल्प और विकल्प का खेल हमेशा चलता रहता है। थोड़ा सा यदि नंबर्स के बारे में हम लोग या हमारे मन को, हमने मन की अवस्था बताई, सो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी, बीटा फ्रीक्वेंसी, अल्फा फ्रीक्वेंसी, थीटा फ्रीक्वेंसी, ये सारा ग्रुप जो है वो मेटा के साथ जुड़ा हुआ है। सो दे नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो क्या होता है जब हम अलर्ट होते हैं, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 16 से 30 के बीच में। ओके, थोड़ा सा शांत हो जाता है, थोड़ी सी मन थोड़ा सा अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर और शांत हो जाता है तो और थीटा में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मन को शांत करना, उसकी उथल पुथल को कम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा ट्रेनिंग होना चाहिए। या तो क्या होता है, नहीं तो बहुत सारी एनर्जी उसमें खर्च होती है, because when the mind is active, it is going to consume a lot of energy. When the mind is a little quiet, right, हमारे मन में हमेशा 60 से 80 हजार विचार आते रहते हैं। अपने सपने में हम लोग को कुछ ना कुछ दिखता रहता है। इसका मतलब क्या है? माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। मन में विचार और जैसे हमने कहा यादें, पुरानी यादें या आगे की बातें, विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, मुझे ये बनना है वो बनना है, दैट इज ऑल्सो दे। वो भी सब चीजें मन में हमेशा कुछ न कुछ काम उसका चालू रहता है। तो क्या होता है, जैसे बहुत सारा हमने सिस्टम्स ऑन करके रख दिया, बहुत सारे ऐप खोल के रख दिए, तो क्या होता है, सिस्टम स्लो हो जाते हैं, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो एक समय में एक चीज हम करें। हम दिन में कई चीज कर सकते हैं, बट जब हमको खाना खाना है तब खाना खाए, जब हमको गाना सुनना है तो गाना सुने, राइट। सो यू डू वन थिंग एट अ टाइम, so that will help you in this thing. Okay, so चलिए एक छोटा सा टेक्निक हम सीखते हैं। क्या करना है हमको, एक छोटा सा आई विल शेयर विथ यू हाउ टू डू दैट, कैसे करना आप शायद जानते भी होंगे। सो ये मन क्या है, उसको और वो जो धागा है वो है हमारे विचार, और वो मन है, that is the needle. So we'll try to put our thoughts, उसको कुछ थोड़ा सा बांध करके रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो इधर उधर घूमता रहेगा, राइट। तो अपने मन को यदि बांधना है, if you have to tie up the mind, so क्या हमारे शास्त्रों में या हमारे योग में कौन सी पद्धति है, that is called, सरल है। हम श्वास तो लेते ही रहते हैं, we keep breathing, so we have to just engage ourselves, our mind, we have to attach the mind to our breath. मन को किसके साथ बांधना है? हमारे श्वास प्रश्वास के साथ। सो क्या करेंगे इसमें, जब हम श्वास लेंगे तब हम मन ही मन बोलेंगे सो, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तब हम मन ही मन कहेंगे हम। सो का मतलब होता है मैं, आई, मी, और हम का मतलब है वह,
वो। सो श्वास प्रश्वास क्या कर रहा है? श्वास प्रश्वास हमको बाहर की दुनिया से जोड़ता है। सो एंड हम, ये श्वास जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ से आता है अपने को? पेड़ पौधों से आता है। इट कम्स फ्रॉम द इकोसिस्टम। और जो हमने अभी कपालभाति की, प्रश्वास किया, वो पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन के बराबर होता है, राइट? इसीलिए हम लोग घर में तुलसी रखते हैं या प्लांट्स रखते हैं, या अपने सोसाइटी में झाड़ लगाते हैं, हाईवेज पे झाड़। थोड़ा सा मुंबई के बाहर जाते तो कितना अच्छा लगता है, तो बोलते हैं हाँ कितनी मौसम बड़ा, द एनवायरनमेंट इज सो क्लियर एंड सो, है ना, वहाँ पे भीड़ भड़का नहीं है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ हम फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलता है। हम लोग महाबलेश्वर जाते हैं या लोनावाला जाते हैं, मुंबई के लोगों के लिए दो चीजें तो ज्यादा ही चाहिए लॉकडाउन के बाद में। सो हमको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू connect our mind, and we have to attach our mind which is now wandering. मन बाहर घूम रहा है, कभी ये हो जाए कितने बजे, ये कब खत्म होने वाला है, क्या है, ये सब करते हैं, राइट? सो ये सारी बातें, कल क्या करना है, 31 तारीख को क्या करना है, दिस ऑल इज गोइंग ऑन इन द माइंड। बट कुछ 2 मिनट के लिए, राइट, we'll try and do this technique, and we'll attach our mind to our breath and say that so and hum. आपको बोलना है, you can also say, मन में कहना है, वो भी सही है, right? Right. So let me stop the screen and let's do this technique. Right. So आंखें बंद कर लेते हैं, चश्मा, we have got spectacles, चश्मा निकाल दीजिए, थोड़ी सीधे बैठ जाइए। एक या करीब 1 मिनट 1.5 मिनट हम लोग करेंगे, राइट? आंखें बंद करेंगे, थोड़ा हमारे आपको स्टेबल करेंगे। लेट्स ट्राई टू स्टेबलाइज आवरसेल्फ। हम कुछ सुन रहे थे, हमारे मन में कुछ चल रहा है। सबसे आसान तरीका मन को कंट्रोल करने का, तो पहला तरीका, फर्स्ट थिंग इज टू क्लोज आवर आईज। आंखें हम बंद कर देते हैं तो क्या होता है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम अंदर देखना पसंद करेंगे। We'll try to look at what is happening inside rather than what is going on outside, right? So chaliye we'll try and practice this over your normal breathing. Don't try to manipulate श्वास लेते समय। सो श्वास छोड़ते समय हम सो एंड हम श्वास ले रहे हैं, तब सो का उच्चार मन ही मन में, मैं श्वास करते समय हम का उच्चार मन ही मन में, सो हम। श्वास आ रही है, इस सृष्टि से ऑक्सीजन मुझे शक्ति मिल रही है, इस बाहरी दुनिया से, इस पेड़ पौधों से, और मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। दैट इज गोइंग बैक टू नेचर इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कितना सुंदर तालमेल बिठाया है इस सृष्टि ने। What we inhale is coming from plants, what we exhale is oxygen for the plants. उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड is not, some part is required for the body, but जो बाहर जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो जो बाहर जा रहा है वो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन के बराबर है। So
and this is my connectivity with nature. So and so I am connected. हम कभी सोच रहे थे कि अरे क्या डल है, मैं अकेला हूँ, अरे ये तो सब चला गया, ये सब कोरोना हो गया, तो क्या हुआ, मेरा ब्रीदिंग तो चल रहा है, आई एम अलाइव. ओके, ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, ये आएगा और जो आता है वो जाने वाला भी है. ओके, सो इसमें क्या इतना दिमाग लगाना. ठीक है, सो स्टे विथ योरसेल्फ, स्टे विथ व्हाट यू हैव, राइट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कल क्या होगा. वो किसको पता है कल क्या होगा, nobody knows. Okay. So just जो हमारे पास है उसकी इन्वेंटरी, उसका हम we take stock of what we have rather than keep worrying about what is going to happen ahead. Planning नहीं करना ऐसा नहीं है, not that you don't plan, you do keep planning, but don't keep worrying about what will happen. Right? Nobody knows what is going to in store. Okay? स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा किसको मालूम, ये कोरोना कब खत्म होगा ये किसको मालूम. So don't worry about it. Right? Stay with yourself, stay with your, because you have got tremendous potential, you have experience, you have potential, and you have all those things. जब खत्म होगा तो all of us will be back to think. आज भी हम जिस भी अवस्था में है, we are trying to do our work. जैसे भी काम तो चल ही रहा है, दुनियादारी चल ही रही है. So we so and हम, मैं वही तत्व हूँ जो मैं, जिस तत्व से मैं बना हूँ उसी तत्व से सृष्टि बनी है, और मैं इस सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ हूँ. और ये सोहम जो है, this is my connect with the external world. मन को शांत करना, मन को एक जगह रखना, this is what this can do. Right? इसको आनापाना सती भी बोलते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस भी बोलते हैं. आप विपස්සना में जाएंगे तो ये 7 दिन, आपको 14 दिन यही करना रहता है. हमने शायद 2 मिनट किया एंड कम आउट ऑफ दिस थिंग्स. थोड़े से अपने हाथों को थोड़ी सी ऊर्जा दे. Just transfer this energy to your throat, to your body. Normally आजकल हम लोग आंखों, we don't touch our face, but we can transfer the energy to our own self. So good, we go to the next one. Quick couple of last things which we are there. So मन के आगे होती है, मन को कंट्रोल करने वाली बात है, वो है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं. हम भी उसको हमारा ज्ञान बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं. हमारा डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, हम बहुत सारे फैसले हम लोग लेते हैं. वो किस तो जैसे हमने बताया और हमने देखा कि मन का काम है, द माइंड इज डूइंग संकल्प एंड विकल्प. तो मन का काम क्या है, इट इज गिविंग यू ऑप्शंस, ये करूं या वो करूं, क्या कैसे करना, ये कब कहाँ जाना, क्या करना. सो काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास है, राइट. एंड देन व्हाट वी डिसाइड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन आवर, हमको जो अच्छा लगता है, जिसमें हमको सपोज वी आर have some attachment with that. जो भी हम हमारा मन जो भी ये देता है, विकल्प देता है, उसके बेसिस में हम we take some decisions. Okay, and that is the part of विज्ञानमय कोश, and that is the intellect. So हमारे मन, जैसे हमने कहा, मन बड़ा चंचल होता है, तो मन को संवारना, मन को अंकुश में रखना, मन को उसको एक दिशा देना, उसको एक गाइडेंस देना, ये काम किसका है, ये बुद्धि का काम है.
otherwise what will happen, हमने मन को देखा, we have seen the mind, mind is very wandering, right? मन हमेशा भटकता रहता है, तो मन को थोड़ा सा उसके ऊपर अंकुश लगाना ये काम है बुद्धि का। उसमें दो बातें हैं, उसमें है विवेक और दूसरा है वैराग्य। ओके, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। विवेक मतलब अच्छे और बुरे का जो फर्क जानता है उसे कहते विवेक। वी नो जो नो कोई अपने को किसी ये घड़ी दिखाया या कोई वस्तु दिखाए, अरे बोला ये डुप्लीकेट चीज है, क्यों? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मैं हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से पहचान सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है। और ये कई बार होता है ना, अरे ये फोन है, ऐसा है वैसा है, ये ले लो आप 5,000 में ले लो, और उसकी कीमत तो 25,000 है, 5,000 में क्यों बेच रहा है? बोला नहीं नहीं यार ये तो डुप्लीकेट होगा या उसका कुछ उसमें कुछ लोचा होगा। That's what we say. So बुद्धि का काम है उसको इंटेलेक्ट, है ना, जिसको बुद्धि बोलते हैं, हमारे मन को नियंत्रण में रखना, हमारे मन को गाइडेंस देना। और दूसरी बात उसमें है वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। ओके, थोड़ा सा कठिन शब्द है और थोड़ा सा व्यवहार के दृष्टि से थोड़ा लगता है, अरे वैराग्य कैसे होता है? हम लोग कोई सन्यासी लोग तो थोड़ी है, राइट? वैराग्य क्या होता है? सो अटैचमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से देखें। इफ यू सी वैराग्य, सो लुक एट वैराग्य फॉर द गोल, फॉर द नॉट फॉर द गोल, फॉर द फ्रूट। ओके, मुझे ये मिलना चाहिए, राइट? उसके जगह हम लोग क्या है कि आई विल डू माय बेस्ट, ओके, एंड लीव द रेस्ट टू द ऑलमाइटी। जैसे हमने कहा आई डू माय बेस्ट, मैंने अपना काम पूरी तरह से किया, जो भी आया, राइट? जैसे हमने देखा कि कभी फर्स्ट नंबर आया, कभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, राइट? हमको भी कभी कभार ऐसा हुआ, कभी 70% मिला, कभी 90% मिले, राइट? कभी फेल, राइट? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, कभी नहीं भी मिला, दैट्स ओके, राइट? हमने हमारे जितना हम में क्षमता है उसके पूरी एड़ी चोटी का जोर हमने लगाया, राइट? फल मिला नहीं मिला, दैट इज नॉट, बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स। दैट इज अ पार्ट ऑफ कर्म योग, आई विल नॉट गेट इनटू दिस। बट बुद्धि के लिए जैसे हमने कहा विवेक, डिस्क्रिमिनेशन इज नेसेसरी। एंड क्योंकि क्या है कि इफ यू फोकस टू मच ऑन द फ्रूट ऑफ एक्शन, you will get distracted. So it is better to do your best, do your work sincerely, diligently, okay? Leave the rest to the thing, क्योंकि जो आपके इसमें लिखा है, आगे में लिखा है, वो आपको मिलना ही है। Nobody can take it from you, okay? So I'm not saying don't endeavor, आप कोशिश नहीं, don't leave those things, but don't invest too much of energies on the goal. You invest your energies on your your journey, your actions towards reaching that goal, right? So that's very important. इस प्रक्रिया में 3 बातें होती है। If you say take decision making, इच्छा शक्ति होती है, right? Suppose I want to buy something, वो पहले दिमाग में आता है। Then कुछ यदि खरीदना है, so अभी दिवाली का समय है, हमको शॉपिंग करनी है या कोई बड़ी चीज करनी है, so I will then look, और इसके बारे में सारी जानकारी मैं लूंगा। I will evaluate ये कौन सा है, इसके साथ क्या है, उसका रिव्यूज मैं देखूंगा, right? And then I will decide. Okay? So that is how I do all these things. Okay? So decision making की power होती है through decision making अच्छा होता है if we follow these 3 steps. Otherwise कुछ ऐसे decision हमने ले लिए जो बिना सोचे समझे, तो we also know उसका खामियाजा हमको लेना पड़ता है आगे कुछ।
चल के लेना पड़ता है. So I will not do this technique, but I will show you this technique. क्या होता है? What is this technique? ये टेक्निक बड़ा सिंपल टेक्निक है. This is very simple technique. इसको बोलते हैं त्राटक. त्राटक is about glazing. एखादी अपना दिया है या लैम्प है या कैंडल है, so आप उसको जलाइए and then you look at that. बाकी लाइट बंद करना है बंद कर दीजिए और उसी दिए को आप देखते रहे. You look at the flame, blinking. अपनी आंखें आप ना बंद, don't try to blink your eyes, try to keep your eyes open. कितना हो सके उतना आप ट्राई कीजिए. एंड उसके बाद में 2 या 3 मिनट के बाद में आपको लगता है कि नहीं चलो इसके आगे नहीं हो सकता है, तो जैसे हमने कपालभाति में we were trying to clean up our lungs, trying to clean up our thing, तो त्राटक your mind, मन में बहुत सारी जो गंदगी है उसकी सफाई करना. दिवाली में हम लोग काफी सारी सफाई करते हैं घर की, राइट. थोड़ी सी मन की भी हम सफाई करें, so that will also help you. क्या करेंगे? एक हाथ डिस्टेंस छोड़ के, so keep one about 2 feet distance, right. आगे अपने आई लेवल पे वो लैंप रखिए या कैंडल रखिए और आप देखिए कि उसको फ्लेम को आप देख सकते हैं तो देखिए. और जब वो बंद हो जाए अपने आपको ऐसा यू फील कि नो आई कांट डू मोर देन दैट, देन यू जस्ट स्टॉप द प्रैक्टिस और आंखें बंद करना. एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्राई एंड रिप्ले दैट होल सीक्वेंस. वो जो 2-3 मिनट का आपने त्राटक किया उसको अपने मन में आप उसको विजुअलाइज कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक हो गया बहिरंग त्राटक, समथिंग विच इज आउटसाइड. आपने वो फ्लेम को देखा एंड देन यू रिप्ले दैट थिंग इन योर माइंड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज देयर. सो let me share that with you. अभी एक छोटा सा है, I am not sharing. So you take a flame, look at that flame and do it for 2 minutes, 3 minutes, जैसे भी हो सकता है. Okay, and then what you do is आंखें बंद करके, तो वो जो flame जो है ना, जो that is like your mind. The flame is your mind. वो हमेशा चंचल है. That the flame will keep flickering, right? तो वो मन को स्थिर करना कैसे करना? तो अपनी आंखें वहां जमाना, okay? और वो तो धीरे धीरे बाकी की सारी चीजें, तो जैसे वो घोड़े को ब्लिंकर्स लगा दिए तो आपको और कुछ देखना नहीं, सिर्फ आपको फ्लेम को देखना है. एंड देन आफ्टर 2 minutes you come out. आंखें बंद करेंगे और पूरा सारा जो रिप्ले ना, एक्शन रिप्ले होता है, you do that again and that will cleanse your thing. 5 मिनट लगेंगे, right? But you will feel so fresh, especially जिनको concentration, हम लोग का ना मन बड़ा चंचल है, right? We keep that mind is very oscillating kind of a thing. So if you want to stabilize the mind, right, अपने बुद्धि को थोड़ा सा sharpen करना है, right, तो एक बहुत अच्छा काम है. Okay. And then the last thing that we should look at, हमने सारी देखी बातें. आखिरी, last is what? Satchit Anand, right? The आखिरी का जो the last layer of our personality, right, is we are all made up of that. हमारी सारी, हमारे our whole base of our life is the bliss body, is the bliss thing. हमारा हमारे पूरे
जीवन का स्वरूप या जीवन का मूल है आनंद, joy. Okay, and we forget that ये बाकी सब चीजें, these are all so क्या काम किया? What we have tried to do is we have tried to look, but the journey has to start from अपने घर से बाहर निकलना. तो that is the first thing, right? एकदम तो आप एवरेस्ट पे नहीं जा सकते. So what we have to do, we have to take steps by step. पहले एक्सरसाइज करना, फिर थोड़ा प्राणायाम करना, फिर थोड़ा मन को ब्रीदिंग के साथ प्राण धारणा करना, थोड़ा सा मन को स्टेबल करना. हमने देखा ना मन की अवस्था, तो वो चंचल अवस्था में कहाँ ध्यान करेंगे? वी कांट डू दैट, राइट? सो जैसे हमने देखा कि ये सारी बातें, दिस ऑल थिंग इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम वेरी ग्रॉस थिंग्स, राइट? जो बातें जो हमें दिखाई देती है, उसके पीछे हम काफी सारा एनर्जी और हमारा समय देते हैं. वो आवश्यक भी है, दैट्स ऑल ओके. बट यदि आप देखेंगे कि दैट फिजिकल बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा फायदेमंद है आगे की टेक्निक्स, which is maybe the प्राणायाम, the meditation, ये जो हमने त्राटक किया, और बहुत सारी टेक्निक्स इसमें है. माइंडफुलनेस है, a number of techniques. ध्यान में भी about 108 techniques. So don't worry about it. So आपको जैसे भी लगे, जो भी लगे, आप ये कीजिए, so that we all that thing. So thank you, Anuji. This was a real wonderful occasion to go through these Panchakoshas, right? I know it's a little difficult topic, but nevertheless, I have tried to make it as simple as possible. And thanks to everyone who has been present in the forum and on the screens. Thank you so much. Dhanyawad. Namaskar. Much. I mean, आसान कुछ भी नहीं है ना आजकल. So this is not a, it's a great topic that you have picked up, and it's something new for people, I would say. And I think the flame technique that you've taught is something that I really need to sit down and do. So maybe you can always do it sometime. Yeah, it's a wonderful, it's a superb technique actually. Yeah, absolutely wonderful. And I have now